Okay, let's we start with our chapter number one. This chapter number one, it deal with the basic information related biology and some basic information of classification. So look, before starting it, just open unit one, diversity in living world, the topic, which is just before the chapter number one. This is the chapter number one. If you go back to one page, you will find that the diversity in living organism. Here look, the first sentence, biology is the science of the life forms and living processes. Highlighted, this is the definition of the biology. What is the biology? The biology is the science of living forms, all animal, plants, etc., whatever, and living processes, and whatever processes take place in it. That is of the processes of the we can say food intake, digestion, respiration, reproduction, excretion, whatever may be. Then after look here, uh, third line, early man, third, fourth line. Early man defined some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., in some among the animals and plants. A common feature of the all such forms in inanimate and animate objects was sense of awe or fear that evoked. मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या हैगा वो उसने ट्राई करा फाइंड आउट करने के लिए, जिससे बायोलॉजी के पूरा अच्छे से स्टडी हो सकता है. तो क्या है सेंस ऑफ फियर, जिससे उसको सेंस आता था कि डर लगता था, फियर होता था, उसका उसने वर्शिप स्टार्ट कर दिया. एज फॉर एग्जाम्पल लायन, तो दैट अर्ली मैन ऑब्जर्व दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट द लायन, और वो लायन वहां से भाग जाएगा. दैट लायन विल रन अवे इफ वी हैव इनफ पावर टू फाइट अगेंस्ट इट. बट if there is a fire, there is a flood, there is a wind, we cannot fight against it. तो उसको उसने क्या करा, उसके सामने उसको वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया. उसने ऐसा अपने सोचा कि ये गॉड है, गॉडनेस की इसके पास पावर है तो वो हमको डिस्ट्रॉय कर सकता है. एंड दैट वाज द बेस फ्रॉम वेयर द लिविंग एंड नॉन लिविंग का डिफरेंस स्टार्ट हुआ. एंड फिर धीरे धीरे हमने लिविंग को स्टडी स्टार्ट कर दिया. एन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ द बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोसेसेस इन बायोलॉजी नॉलेज. वो भी कभी कोई जरूरत नहीं, तुम पूरा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. यस. देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यस. सिस्टमेटिक एंड नॉमिंग मोन्यूमेंटल. कौन सी लाइन है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 लाइन. सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी. नंबर 1, काई के लिए वो डिस्क्रिप्शन आया? आउट ऑफ नेसेसिटी, हमारी नेसेसिटी फुलफिल करने के लिए. द डिटेल सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो उसके लिए बोलो क्या करना पड़ा? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन. कोई भी एनिमल और प्लांट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. सेकंड वन, नोमेनक्लेचर, उसका नोमेनक्लेचर करना पड़ता है. थर्ड वन, क्लासिफिकेशन, उसको क्लासीफाई करना पड़ता है कि वो कौन से ग्रुप में आएगा और कहाँ जाएगा. तो इसको भी आप टिक करो. ओके. तो यहाँ से हमको ये एक डेफिनेशन और एक दो स्टेप हमको इतना याद होना चाहिए. Now we move to our chapter number 1, that is the living world. How wonderful is the living world? है ना, वंडरफुल है. देखो, the wide range of living types of is amazing. अमेजिंग है. देखो, कोई एनिमल कैसा है, कोई प्लांट कैसा है, कोई एनिमल अलग है, कोई प्लांट कैसा अलग है. The extraordinary habitats in which we find living organism, be it cold mountains, cold mountain में भी रहता है, deciduous forest, oceans, fresh water, example lakes,
deserts or hot spring, lives as speechless, live as speechless. The beauty of a galloping horse, of the migrating birds. गैलोपिंग हॉर्स है ना, ये सब जोर से सब भागता है, जैसे हमको लगता है जंप मार के जा रहे हैं. Migrating birds, the valley of flowers, of the or the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. हमको वो डीप आश्चर्यचकित, जिसको गुजराती में बोलते हैं, वंडर, अलग अलग, वंडरफुल क्या है. The ecological conflict and the cooperation among the members of the population and among the population of community or even the molecular traffic inside the cell make us deeply reflect on what indeed life is. Highlight करो what life is. तो कहाँ से the ecological conflict and cooperation among members of population. एक तो क्या है ecological, ecosystem हमारी अलग अलग है. In our ecosystem, we have those approximately 10 to 100 to 120 inches of water, that rainfall, इतना temperature रहेगा वो है. When you move to that देहरादून में अलग है, फिर वो उसके ऊपर वहाँ पे माउंटेन पे मसूरी में जाओगे तो वहाँ का अलग है. मीन्स एवरीवेयर व्हाट इज, ये इकोलॉजिकल कंडीशन अलग है. दैट इकोलॉजिकल कंडीशन, देन आफ्टर व्हाट cooperation among members, living members के बीच में cooperation. We are cooperating with the plants. Plants are cooperating with us. We are cooperating with certain insects. Certain insects are cooperating with us. As for example, honeybees. If we protect the honeybees, 90% of the pollination of the plants is carried out by the honeybees. So वो honeybees हमको indirectly ऐसे cooperate करती है, हम उसको cooperate करते हैं. Numbers of examples are there. Among this एक के दो example देके हमको आगे बढ़ना है, जिससे ये theoretical subject तुमको समझ में आ जाए, बाद में उसको learn कर ही देना है. Among the population, members of the population, among the population of community, पूरी community बनती है large. एक लिमिटेड एरिया का रहेगा उसको पॉपुलेशन कहेंगे, बट जब लार्ज एरिया के अंदर सब लिविंग ओरिएंट तो उसको बोलेंगे कम्युनिटी, लिविंग कम्युनिटी. और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन मॉलिक्यूलर ट्रैफिक. ये सब समझने के लिए हमको चैप्टर नंबर 8 आना चाहिए. In the chapter number 8 and 9 we have studied that numbers of molecules are there. These of molecules are interconverted, वो सब प्रोसेस कर रहेंगे. चैप्टर नंबर 8 एंड 9 पहले लेने का रीज़न ही ये है कि तुमको बायोलॉजी समझ में आए. नहीं तो ये थियोरी कितना ने बोलते हैं सर ऐसा तो ईजी है बट कुछ समझ में नहीं आता, सब ऊपर से आता है. एंड एट द टाइम ऑफ द एनुअल एग्जाम देट अब सर इसका जो है वो मीनिंग समझ में आता है. द रीज़न इज दैट कि जब ये हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं तुमको पता ही नहीं है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक क्या है. But you studied in the chapter number 9 that molecular traffic, all the physiological processes, biochemical reactions are going on is what the requirement of cell. So accordingly, that is the our beauty, amazing. What indeed life is. ये सब पे से क्वेश्चन आता है कि इतना सब होता है तो फिर लाइफ क्या है. The question has two implicate question within it. The first is a technical one and 6 answer to the living is as opposed to the non-living, and second is the philosophical one. Philosophical वो सब सेंट ने महात्मा ने फकीर ने वो सब होते हैं कि लाइफ ये है वो उनके पास रहने दो. As scientists we shall not attempt in the answering the second. वो दूसरे का आंसर नहीं करने का है कि वो ऐसा है ना वैसा है ना वो होता नहीं होता. हमको तो साइंटिफिक बेस से चाहिए आंसर. We will try to reflect on it. What is living? समझ में आता है का? तो इतना हमको ये समझने के बाद में ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. Many times short questions are asked from this paragraph. तो ये पैराग्राफ के वहाँ पे ऐसा आपने कर दो एंड लिखो VSQ, very short question. Minimum 5 questions are asked. अब वो 5 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो मैंने आपको जो रेफरेंस बुक भी दी है उसमें से ही मिलेंगे.
एज वेल एज पूरा अगर जो तुमने चैप्टर का ये टॉपिक ये पैराग्राफ अच्छे से लर्न किया है, समझ के लर्न किया है, तो यू विल आंसर एनी क्वेश्चन बिकॉज नंबर्स ऑफ टाइप ऑफ द क्वेश्चन इसमें से फॉर्म हो सकते हैं. व्हाट इज लिविंग? अब मेन टॉपिक व्हाट इज लिविंग. लिविंग किसको बोलेंगे? व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी conventionally look for the distinctive characteristic exhibited by living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको स्टडी को हम स्टार्ट करेंगे. कैसा है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी ऑफ सेंस एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में सेंस देखो, ड्यू टू दिस ह्यूमिडिटी क्या हैगा, सनलाइट नहीं है तो भी गर्म हो रहेगा, ये सब हम सेंस कर सकते हैं. एनवायरमेंट एंड माउंट ए सूटेबल रिस्पॉन्स. सूटेबल रिस्पॉन्स के भाई पंखा ये फैन चालू करो, ये करो, वो करो. ओके, सो दिस इज द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट. टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. हाईलाइट करो व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. कहाँ से स्टार्ट करोगे? हाईलाइट इट. वी आर गेटिंग द आंसर फ्रॉम वेयर? ग्रोथ, reproduction, ability of sense environment and mount of suitable dispense come out of our mind immediately as unique features of living organisms. So look, these are the unique features. Now look, one can add a few more features like metabolism. Whatever metabolic activity processes are going on in our body, that is the metabolism. That metabolism means formation of the molecule, destruction of the molecule, etc. As we are taking the food, that food is digested in our alimentary canal. That is destruction. वो जो डिस्ट्रक्शन हो रहेगा वो क्या आएगा? कैटाबोलिज्म. अब वो जो फूड पार्टिकल्स जो सेपरेट हुए, दोज मॉलिक्यूल्स आर व्हेन यूज्ड इन आवर बॉडी, इन आवर सेल टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल्स, एनाबोलिक. तो ये एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों होता है. एज वेल एज ड्यूरिंग दिस एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक मीन्स मेटाबोलिक रिएक्शंस we require energy. That energy is provided from our the body itself, that is from our cells. Those are called mitochondria, and those mitochondria are producing the ATPs. These ATPs are used for as our requirement. So to synthesize ATP is also one kind of the metabolic process. Utilizing of the ATP is also one kind of the metabolic process. So numbers of the metabolic processes are there. So we can add, and these processes are only present in the living one. Non-living one cannot exhibit these all the process. One can add a few more features like metabolism, ability of self-replicate. सेल्फ रेप्लिकेट, अवर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो सा रेप्लिकेट होता है. सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस ऑफ दिस लिस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ग्रोथ. लुक, फर्स्ट वन इज द ग्रोथ. ओके, चलो ये ग्रोथ को तुम 2 मिनट के लिए पढ़ो. Okay, let's we start with the growth. All living organisms grow. So first we should be answered when we try to define this. So all living organism grow. तो यहाँ grow है, उसके बाजू में लिख दो growth. Growth and keep the question mark. Write 4 marks. Sorry, ये 4 marks में नहीं आएगा, 3 marks. Because long answer but easy.
Increase in mass and increase in number. Increase in mass as well as increase in number. Both is combinedly called the growth. Not only mass, but numbers of cells of individuals are twin characteristics of the growth. Highlight करा ये दोनों. These both are the twin characteristics. दोनों एक साथ में ही रहते हैंगे. कोई एक होगा तो ग्रोथ नहीं बोलेंगे. कैसे? अभी हमने समझ में आएगा. A multicellular organism grow by cell division. बोलो cell division multicellular में हुआ, what will be happen? This is the cell of our chick cell or any cell. If it undergo division, cell division is split into two. तो नंबर तो इंक्रीज हो गए 1 to 2, बट व्हाट हैपन, साइज तो इतनी ही रही, बट इट विल नॉट हैपन. व्हाट विल बी हैपन? इमीडिएटली बोथ विल इंक्रीज इन साइज टू अटेन ए ओरिजिनल साइज. तो बोलो क्या हुआ? पहले मास इतना ही था, अब ये मास डबल हो गया, एज वेल एज नंबर इज ऑल्सो डबल. दो नंबर भी हो गए एंड डबल मास भी हो गया. मास एंड दैट ग्रोथ. सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. The growth of the male, growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. Plants में क्या होता है? Throughout the lifespan. कभी रुकता नहीं. Animal में क्या होता है? Growth रुक जाती है. बोलो मेरे में before 40 years it was stopped. In your still you are of the 15-16 years, so it will be take place few inches in coming 2 to 3 years. Then after it will be stopped. अब कितने आते हैं सर? हमारे वहाँ पे वो है ना नीम ट्री, वो तो इतना ही है, मैं जब से देख रहा हूँ. अरे वो इतना हो गया है, बट उसकी ब्रांचेस तो ऐसी डेवलप हो रही है. इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू द सर्टेन एज. बोलो ये प्लांट एंड एनिमल का डिफरेंस है. हाईलाइट करो और बाजू में लिखो प्लांट डिफरेंस, प्लांट एंड एनिमल. हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल. लेकिन एनिमल में भी होता है. कैसे? अभी सपोज कि मेरे को यहाँ पे इंजरी हो गई. इंजरी मीन्स व्हाट? लॉस ऑफ सेल. इफ दीज सेल्स आर लॉस्ट फ्रॉम हियर, व्हाट विल बी हैपन? न्यू सेल विल बी एडेड. यस, टू रिप्लेस द dead cell division will take place, but not to increase the growth in animals. Unicellular organism grow by cell division. One can easily observe this in vitro cultures by simple counting the numbers of the cells under the microscope. In vitro का हाईलाइट करके बाजू में लिखो artificially grown, but condition provided are equivalent to natural. ये इसकी डेफिनेशन है. ये कंडीशन जो प्रोवाइड करी वो नेचुरल है जैसी है, बट एक्चुअली वो आर्टिफिशियल है. वे व्हाट एग्जांपल? इफ यू टेक सम सेल इन टेस्ट ट्यूब्स, inside the test tube we are providing a temperature, whatever inside our cell is our body is there, enzymes, nutrient, whatever वो नेचुरल कंडीशन में होता है वो सब हम प्रोवाइड करते हैंगे. बट हुआ तो क्या? आर्टिफिशियल. दैट इज कॉल्ड इन विट्रो. टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग प्रोसेसेस, दिस इन विट्रो कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन विट्रो में कल्चर करके माइक्रोस्कोप में उसको काउंट करने के सेल वी विल फाइंड द डिफरेंस. मीन्स हाउ living organism can increase in its growth by numbers and mass both. One must remember, in majority of the higher animals and plants, growth is reproductions are mutually exclusive events. One must remember that the increase in body mass is considered as growth. Non-living object also grow if we take increase in body mass as a criteria of the growth. बोलो खाली बॉडी मास को हम लेंगे, देखो कि ये बॉडी मास बढ़ा उसको, तो वो ग्रोथ नहीं है. क्यों नहीं है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो. डेजर्ट में
ड्यू टू द विंड इफेक्ट व्हाट विल बी हैपन, स्टॉर्म से क्या होगा, सैंड का पूरा ऐसा माउंटेन थोड़ा सा का मास से ना बना हुआ है, तो थोड़ी सैंड और उसके ऊपर डिपॉजिट हो गई तो इंक्रीज हो गई साइज, तो उसको ग्रोथ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of the material on the surface. Look, if only material are deposited on the surface, it cannot be considered as a growth. In living organism, growth is from inside. Growth should be from inside. Highlight karo. This is a very important points of the growth. You may ask in the exam. अरे कोई भी पूछेगा कि ग्रोथ क्या है तो बोलेगा ग्रोथ शुड बी फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। फिर वो फिलोसॉफी लिखे ना, इनसाइड तुम्हारे अंदर से क्या आता है, वो सब हम नहीं सोचते हैं, वो तो सोचना ही नहीं है। वी आर द टेक्निकल, वी आर द साइंटिफिक पर्सन। इनसाइड द बॉडी क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन भी इनक्रीज होता है, सब कुछ इनक्रीज होता है, वो जो भी है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओनली इसको ही हम डिफाइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बोलो खाली इंक्रीज इन साइज हम कहते हैं तो वो साइज तो रुक गया, मास भी रुक गया, खाली थोड़ा हो गया तो क्या ग्रोथ नहीं हुआ क्या हुआ, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन अंडर विच कैन बी ऑब्जर्व इन all living organism have to be explained them, and we understand that it characterizes of the living system. A dead organism does not grow. तो ये सब आया क्योंकि वो डेड भी हो गया तो वो ग्रो नहीं करता है, लेकिन वो भी सेल का बना हुआ है। वैसे सब क्वेश्चन बहुत कुछ आते हैं। तो सो व्हाट शुड डू, वी शुड टेक अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो टू डिफाइन हाउ द एंड व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Reproduction likewise is a characteristic of the living organism. बोलो दूसरा कैरेक्टर क्या आया, रिप्रोडक्शन। In multicellular organism, reproduction refers to the production of the progeny possessing features more or less similar to those of parents. Highlight करो। Reproduction refers to the production of the progeny possessing features more or less similar to those of the parents. न्यू आता है, पेरेंट्स के जैसा ही होता है। ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग होगा ह्यूमन ही होगा, एलिफेंट का होगा एलिफेंट ही होगा। एलिफेंट का रेट नहीं होगा, नहीं रेट का एलिफेंट जैसा नहीं होगा। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो उसके लिए ज़्यादा अगर जो कुछ होता है तो हम किसको कंसीडर करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी शुड अवेयर ऑफ द व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Look, asexual reproduction. In asexual reproduction, no specialized cells are formed. Cells are formed. बरोबर समझना। Which require fertilization. But this kind of cell directly form new one. चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, स्पेशलाइज सेल्स, यही आएगा। स्पेशलाइज सेल्स आर फॉर्म विच रिक्वायर्ड फर्टिलाइजेशन एंड दैट, ऊपर से ही पूरा आएगा, तुमको नोटबुक में लिख लेना है। फर्टिलाइजेशन एंड दैट फॉर्म, यहां से चलो पूरा ही कर देता हूं। स्पेशलाइज सेल्स आर फॉर्म ब्रैकेट में गैमेट्स which on fertilization form zygote and later on new individual. zygote में डेवलपमेंट होकर न्यू इंडिविजुअल बनता है। मीन्स यहाँ ऐसे स्पेशलाइज सेल नहीं है कि जो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे ऐसे स्पेशलाइजेशन सेल है जिसको फर्टिलाइजेशन चाहिएगा।
अगर जो ऐसा स्पेशलाइज सेल है कि जिसको फर्टिलाइज करना पड़ता हैगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें फर्टिलाइज नहीं करना पड़ता है उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Organism reproduce by asexually means also fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce। बोलो फंगाई में क्या होता है, asexual spores यानी एसेस cell, no specialized cells which required fertilization, they but this kind of name is specialized cell directly form the। तो बोलो फंगाई में जो बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, बोलो चलो देन आफ्टर इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा, सॉरी कहाँ गया, फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एक्सेक्सुअल स्पोर्स, वो स्पेशलाइज सेल को स्पोर्स बोलते हैं। दे प्रोड्यूस इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व द बडिंग। बोलो क्या होता है, एनिमल और प्लांट्स के ऊपर ही ऐसा थोड़ा आउटग्रोथ बनता है या हाइड्रा में, एंड देन आफ्टर व्हाट हैपन, दिस आउटग्रोथ इटसेल्फ ये छोटे एनिमल जैसा बन जाता है, एंड इट डिटेच फ्रॉम दिस पार्ट फ्रॉम द मदर बॉडी। ये डिटेच होता है, डिटेच होने के पहले जो है इसको ना बोलते बर्ड, प्रोसेस को बोलते बडिंग। ये बडिंग हुआ ने जब यहाँ से डिटेच हुआ तो ये रिलीज होके यहाँ पे जहाँ पे भी जाके सेटल होगा, इट विल स्टार्ट टू डेवलप एज अ न्यू इंडिविजुअल वन। In lower organism like yeast and we observe the budding in Plaironia flatworms we observe the true regeneration, that is a fragmented organism regenerate the lost part of the his body and become a new organism, flatworm, liver fluke etc. What happen here, बोलो क्या होगा, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, ये कट हुआ है, सो दिस विल डेवलप इन कंप्लीट न्यू वन। ये ऊपर का पार्ट नहीं, लोअर पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। जितने पार्ट होंगे एवरी पार्ट विल डेवलप इनटू न्यू वन, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। The fungi, the filamentous algae, the protozoans of mosses all easily multiply by fragmentation. Highlight करो. Give the list of the organism that can multiply by fragmentation. When it comes to the unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with its growth. That is the increase in number of the cells. Bolo. This sentence you can understand by the amoeba. Look, this is one amoeba. What happens in this amoeba? It undergoes cell division. So it split into two. Immediately it will also increase in size. तो बोलो ये ऐसे अपने देखने जाओ तो पहले ग्रोथ में एक्सप्लेन करा था वही है, तो ये दिस इज द ग्रोथ एज वेल एज दिस इज द रिप्रोडक्शन ऑल्सो। सो इन केस ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर द लाइक द synonyms because simple cell division leads to form a new one also, as well as it is increase in mass and number. In living organism growth we have already defined the growth is equivalent to increase in cell number or the mass. Hence we notice that single cell organism we are not very clear about usage of these two terms, growth and रिप्रोडक्शन। इसको भी हाईलाइट करो, यूनिसेल्युलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए बहुत क्लियरिटी नहीं है कि उसको ग्रोथ बोलना कि रिप्रोडक्शन बोलना। ये दिस सेंटेंस आई थिंक इट वाज आगे इन गुजकेट एग्जाम। Hence we notice that the single cell organism we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. Further, there are the many organisms we do not reproduce. Moles means if artificial in vitro fertilization take place between the female donkey and male horse,
it is mole. That mole does not have the ability of the reproduction. Sterile worker bees, next year you will have the sex determination chapter. There are the some bees, हनी बीज, वो स्टराइल रहती है कि उस जो वर्कर बोलते हैं उसको. Infertile human couples, many human couples do not have the child. Infertile due to some problem in the reproductive system. They are the normal, but reproductive system. जैसे बोलो कोई बेचारा डेफ है, why he is deaf? He has all this, but some problem is there. तो reproductive organ में प्रॉब्लम आया, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम आता है तो ये अटैक होता है, वो सब होता है, like that. Hence, reproduction also cannot be all-inclusive defining characteristics of the living organism. Of course, no living object is capable to reproduce or replicating by itself. इसको सिंपली एक ही रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया को लेके हम लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते, जो कि इट इज द ट्रू, इट इज अ फैक्ट दैट व्हाट नॉन लिविंग कैन, नॉट ए नॉन लिविंग कैन अंडरगो रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन. तो वो बोले सर जो लिविंग होगा वही अपने करेगा ना. अरे लेकिन अमीबा जैसे यूनिसेल्युलर में प्रॉब्लम है कि उसको ग्रोथ बोलना कि रिप्रोडक्शन बोलना. मोल है वो इनफर्टाइल कपल में फिर क्या उसको नॉन लिविंग कहना. Beside these other questions are also there. So only reproduction is not the characteristics of the living organism that by we can define कि ये लिविंग के लिए और नॉन लिविंग है. हाँ, ग्रोथ और लिविंग दोनों को कंबाइन करेंगे तो भी थोड़े प्रॉब्लम आएंगे. तो उसके लिए थर्ड पॉइंट आता है. देखो क्या है थर्ड पॉइंट, ये सबको कंबाइन लिया व्हेन वी डिफाइन इट टर्न्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज द लिविंग वन. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज द मेटाबॉलिज्म. इसको भी टिक मार्क करो. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर द 3 मार्क्स क्वेश्चन. मेटाबॉलिज्म. All living organisms are made up of the chemicals we have studied in the chapter number 9. Our proteins, our carbohydrates, polysaccharides, nucleic acids, these all are what? The chemicals. These chemicals small and big. Monosaccharides, small. Polysaccharides, very big, very large. Amino acids, single. Long chain, polypeptide and proteins. Belonging to the various classes, size and functions. बोलो उसके क्लास भी अलग है. मोनोमर है, कोई पॉलीमर है, कोई डाइमर है. उसके साइज अलग है, उसके फंक्शन अलग हैंगे. आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू द सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. हमने अपने वो चैप्टर नंबर 9 में स्टडी करा है. कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता है और वो एक में से दूसरे में कन्वर्ट होता है. इफ इट इज नॉट प्रोड्यूस एंड कन्वर्जन विल स्टॉप, आवर लिविंग प्रोसेस विल बी स्टॉप. एज फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द फूड. Polysaccharide starch, they starch from our bread, bhakri, chapati, that is digested in our alimentary canal and it turns into monosaccharide. Those monosaccharide is absorbed by from our alimentary canal, from intestine by our blood. वो blood पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है. फिर एक्स्ट्रा जो आ जाता है वो लीवर में जाके ग्लाइकोजन बनता है. तो बोलो यहाँ पे क्या हुआ, वो पॉलीसेकेराइड स्टार्च का डिस्ट्रक्शन हुआ, एब्जॉर्ब हुआ. एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाके ग्लाइकोजन बना. मीन्स वंस अगेन वो मोनोसेकेराइड क्या बन गया, पॉलीसेकेराइड. तो बनता भी है, टूटता भी है, बनता है एनाबोलिक, टूटता है कैटाबोलिक, सब होता रहता है. मीन्स दिस इज मेटाबोलिक. नॉट अ सिंगल लिविंग, नॉन लिविंग कैन कैरी आउट दिस मेटाबोलिक. This conversion, chemical reaction, metabolic reaction, these are the thousands of metabolic reacting occurring simultaneously inside living organism. बोलो हमारे अंदर thousands of reactions होते रहते हैं. These are the thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside the living organism, be they unicellular or multicellular. All plants, animal, fungi, microbes exhibit metabolism. सब living है तो metabolism होगा ही. The sum total of the all chemical reaction occurring in our body metabolism, non-living object exhibit metabolism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in free system. बोलो अब आपने क्या करा, अभी मैंने समझा था इन विट्रो. इन विट्रो एक टेस्ट ट्यूब में provide the condition like that of the cytoplasmic condition, means whatever present in our cell. और उसके अंदर एज फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम आप रख दो और उसमें थोड़े स्टार्च के ऐसे मॉलिक्यूल्स रख दो. तो डेट लाइसोसोम विल स्टार्ट टू डिग्रेड डेट स्टार्च इनटू मोनोसेकेराइड.
उसको ब्रेक करेगा, मोनोसेक्राइड बना देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अगर उसके अंदर हमने दूसरे एंजाइम ने दूसरा प्रोवाइड किया तो मे पॉसिबल के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म के वंस अगेन दोज ग्लूकोज विल टर्न्स इनटू ग्लाइकोजन। हाँ, ये हुआ आउटसाइड मेटाबॉलिक, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन नॉन लिविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, बट वो टेस्ट ट्यूब कैसी है? नॉन लिविंग है। These metabolic activity processes should be in the living cell. Perform in a test tube is neither living nor non-living. Hence, while the metabolism is defining features of all living organism without exception. कि ऐसा हम बोल देंगे कि चलो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसके अंदर होगी, इनसाइड होगी, और वो अपने लिविंग होगा। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। वो लिविंग थिंग नहीं है, उसके अंदर होने वाली लिविंग रिएक्शन है। लिविंग थिंग वो होगा जो खुद भी लिविंग होगा और उसके अंदर लिविंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होंगे। ये दोनों होगा तो वो लिविंग होगा। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बनता है, तो हमको 3 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। Hence, cellular organism of the body is the defining features of the life form. हाईलाइट करो इसके लिए। फिर इस पे से क्या आ गया, हमको वो एक्सप्लेन करना है कि ऐसा कुछ भी होगा, ग्रोथ भी होगा तो सेल चाहिएगा, रिप्रोडक्शन है तो भी सेल चाहिएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है तो भी सेल चाहिएगा। Hence, we can say that hence cellular organization of the body is defining the feature of life forms. हाईलाइट करो और यहां पे लिख दो नीट VIMP। Perhaps the most obvious and technically complicated features of all living organism is that ability to sense their surrounding or environment and respond to those environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. बोलो, to respond to the surrounding, it may be physical, कुछ भी आके तुमको यहाँ पे टच हुआ, होट है तो आप ऐसा अपने टर्न कर दोगे। केमिकल, तुम्हारा बोले ये अपने ये टच होएगा, किसको टच होगा? इस फॉर एग्जांपल एसिड में जाएगा, तुम तुरंत खींच लोगे। बायोलॉजिकल, इनसाइड अवर बॉडी वॉट एवर इज गोइंग ऑन, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो भी हम फील करते हैं, क्या होता है? हार्ट बीट होता है, इंस्पिरेशन एक्सपीरेशंस होता है, नंबर्स ऑफ आर देयर। वी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। Plants respond to the external factors like light, water, temperature and other organisms, pollutants, etc. प्लांट भी सबको रिस्पॉन्स करता है, अदर ऑर्गेनिज्म को भी वो रिस्पॉन्स करता है, पॉल्यूशन को भी रिस्पॉन्स करता है। All from the prokaryote to the most of the complex eukaryotes can sense the response to the environmental cues. कौन से? Prokaryote means those what we call that the bacteria and blue-green, they also respond to environment. Eukaryotes like we and other all, अमीबा ने, ये सब हमने चैप्टर नंबर 8 में किया, सॉरी 3rd में किया है। दिस ऑल और 8 में भी किया है। दिस ऑल ऑल्सो है एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। फोटोपीरियड affects the reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. हाईलाइट करो फोटोपीरियड, ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। Look, birds do not have produced the eggs throughout the life, throughout the 365 days, complete year में वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो उसके सीजन आएगा तो ही। एंड व्हाट इज दैट सीजन? सीजन इज द लेंथ ऑफ लाइट पीरियड। ऐसे प्लांट भी है, सम आर द विंटर प्लांट, सम आर द समर प्लांट। कैसे बोलेंगे? बोलो, थोड़े ऐसे प्लांट है उनको लाइट पीरियड कम चाहिए तो फिर वो ग्रो करते हो, फ्लावरिंग करते हैं। थोड़े ऐसे उनको लाइट पीरियड ज़्यादा चाहिए, वो सीजन में वो ग्रो भी करते हो, फ्लावरिंग करते हैं। अदर एनिमल्स ऑल्सो, डॉग कैन नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। उसकी जो सीजन आती है वही, उसको टेम्परेचर भी चाहिए और लाइट पीरियड भी चाहिए है। मीन्स दिस ऑल आर द फैक्टर्स बाय विच वी आर मीन्स लिविंग कैन रिस्पॉन्डिंग टू इट। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। बोलो, हमारी बॉडी में केमिकल जाता है ना। इंस्पिरेशन क्या गया? नॉट ऑक्सीजन, एयर। एयर इज 80% ऑफ द नाइट्रोजन, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द नाइट्रोजन। रेस्ट
अबाउट 19 पॉइंट सम ऐसा कुछ है, वो क्या हैगा 18 पॉइंट के 19 पॉइंट जो भी है, ऑक्सीजन एंड लेस अदर। तो बोलो क्या हुआ, हमारी बॉडी में सब एयर गई, बट हमारी बॉडी के लंग्स ने क्या करा, खाली किसको एब्जॉर्ब किया, 80% नाइट्रोजन को, नहीं, इट एब्जॉर्ब ओनली ऑक्सीजन, पर्टिकुलर केमिकल को ही करेगा। हमारी बॉडी में से लंग्स के थ्रू क्या बाहर आया, CO2, CO2 बाहर गया, वो सब नाइट्रोजन एसिड रिटर्न हुआ। प्लांट्स में ही सराउंडिंग एयर है, तो बोले एयर में से वो क्या है, नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करता है, नहीं करता है एब्सॉर्ब, प्लांट का लीव्स, हाँ वो फिर वो अलग आता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वो अलग हैगा, वो माइक्रोब्स करते हैं, बैक्टीरिया। तो बोलो क्या हुआ, प्लांट्स ने क्या एब्सॉर्ब करा, CO2, और क्या रिलीज करा, ऑक्सीजन। अभी मैंने बोला था माइक्रोस इसमें से क्या एब्सॉर्ब करता है, O2 एंड CO2, नो, ओनली नाइट्रोजन। So these chemical responses are also present in the living ones. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who aware of himself, that is has a self consciousness. Highlight करो, ह्यूमन बीइंग में इतना अच्छा है जो कि दूसरे एनिमल में पर वो इतना अच्छा डेवलप नहीं है। Consciousness therefore becomes the defining property of the living organism. ये सब these all the defining property, not a single one. कि इतना ही आएगा तो हम we cannot consider it as a living. This all should be there. This growth, this reproduction, this response to the environment, metabolic activities constitute to the response to the environment. These all went together. They are the called as a living one. When it comes to the human beings, it is all for more difficult to define the living state. हमारा living state define करना और भी difficult हो जाता है, because every individual is different. बोलो कोई को क्या आएगा, कोई को गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो किसी को रसमलाई अच्छा लगता है। We observe patient lying in coma in hospital, visually supported by the machines which replace heart and lungs. Heart और lungs उसका वर्क नहीं कर रहा है तो उसको वो मशीन पे रखा है, that person is called the coma. He is not responding to environment, nothing is there. तो क्या उसको डेड गिनना, अरे वो तो लिविंग है, तो वो उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ भी नहीं है, सेंस भी नहीं है, इवन मैकेनिकल प्रोसेस भी जो हम लिविंग के प्रोसेस, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन नहीं, ये सब भी नहीं है, तो उसको डेड गिनना। तो तुम बोले नहीं सर वो तो कोमा में नहीं, लिविंग है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, नहीं तो उसको ब्रेन डेड भी बोलते हैं। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। बोलो क्या बोलेंगे, कितने बोलते हैं सर वो है तो लिविंग बट है तो नॉन लिविंग जैसा ना। नो, in science clear cut answer, either it is a living or non living, बोल दो, we cannot define it. In higher classes you will come to know that all living phenomena are due to the underlying the interactions. Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of the interaction among the constituent cells. बोलो हायर क्लासेस में तुम जब स्टडी करोगे तो क्या, ओनली सेल्स, नॉट द सेल्स बट सेल्स का इंटरेक्शन होके पूरे टिश्यू बना और उसने फंक्शन करा, वो इम्पोर्टेंट है। Similarly, properties of the cell organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of the interaction among the molecular components comprising of the organelle. कोई ने बोलेगा सर हम सेल को कंसीडर करेंगे, तो ओनली दैट कंसीडरिंग सेल एंड ऑर्गेनल इज नॉट इम्पोर्टेंट। इन दैट ऑर्गेनल्स व्हाट हैपन, वेरियस केमिकल रिएक्शंस, एंड एक का केमिकल रिएक्शन हुआ तो दूसरे में जाता है। एज फॉर वी हैव स्टडीड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इट सिंथेसाइज द प्रोटीन, दैट प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडी में गया तो उसका पैकेजिंग ने जो कुछ भी हुआ वो अपने होने के बाद में वो बाहर निकला, बाहर अपने गया तो लाइसोसोम बनता है कि जो भी कुछ बनता है, मीन्स the interaction among the molecules, the interaction between the molecule is the most important to carry out the various functions and define the living and non-living, particularly in human being. This interaction result in emerged properties at a higher level of the organization. This phenomenon is true in hierarchy of the organizational complexity of the all level. बोलो पहले हम सिंपल ग्रोथ देखा, फिर रिप्रोडक्शन देखा, फिर मेटाबॉलिक देखा, फिर रिएक्शन मीन्स एनवायरनमेंट के साथ में उसका रिएक्शन क्या है, फिर अब स्मॉल लेवल। तो हायरार्ची जितना हम हायर लेवल स्टडीज करते जाएंगे इतना वो फिनोमिनन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
Therefore we can say that the living organisms are self replicating. बोलो क्या आपने इसमें से उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या निकलता है, इसको हाईलाइट करो. सेल्फ रेप्लिकेटिंग, उसके आप से प्रोडक्शन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन. Evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. यहाँ इसका इतना जो sentences है उसमें सब आ गया. Biology is the story of the life on earth. Biology is the story of the evolution of the life organism on the earth. All living organisms, present, past, future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material, but no varying degree. सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, बट जेनेटिक मटेरियल सब में डीएनए है, सब में क्रोमोसोम है, उसमें डिफरेंस नहीं है. हाँ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिफरेंस है. तो बोलो व्हाट इज द बायोलॉजी. तो ये लास्ट 1 2 3 4 लाइंस को पेज के बॉटम पे है कि पेज नंबर 5 पे बॉटम 4 लाइंस को कर लो. व्हाट इज बायोलॉजी. तो देखो बायोलॉजी की एक डेफिनेशन मैंने आगे से कराई ने. दिस इज ऑल्सो द बायोलॉजी डेफिनेशन. ओके, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 1. वी विल proceed for the second part of it in next video. Okay, best of luck.